مکان نصیب بھی ہے، وہ دور بھی ہے قریب بھی ہے، وہ دور بھی ہے قریب بھی ہے، زمیں کرا فلک دعوی علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کسی نے پوچھا کیا بات ہے صاحب، قرآن کیا ہے، کیا بات ہے، وہ کون ہے جو ہے جانے ایمان، وہ کون ہے جو ہے شیر یزداں، وہ کون ہے جو ہے شاہ میدان، وہ کون ہے جو ہے شاہ کہاں جابان یہ میں نے ہنسی کر علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، کس کی سب سے سوا فضیلت، وہ کس پنازا ہے خود مشیات، وہ کس کی پردے میں ہے حقیقت، بڑی ہے کعبے کی کس عظمت، بڑی ہے کعبے کی کس عظمت، کہاں یہ کعبہ نے مسکرا کر علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی علی ہے، علی تو بندہ کیا بات ہے صاحب، نواز بھی ہے، علی بھی عین نماز بھی ہے، غریب کا چار ساز بھی ہے، علی مشیت کا راز بھی ہے، علی مشیت کا راز بھی ہے، بسی میں جانا محمد العلم، سبحان اللہ سبحان اللہ، مظفر مظفر وہ آگے لے بول، وہ دے دو پہلے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجل فرجہ، بارے دیگر صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وجل فرجہ، خوشی کی بزم سجی ہے، جو چاہیے مانگو، کیا بات ہے، خوشی کی بزم سجی ہے، جو چاہیے مانگو، نخی کے گھر کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہاں جو چاہیے مانگو، در بطور پا تقسیم ہوتی ہے خوشیاں، عطا جوش الہی ہے، جو چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ، عطا جوش الہی ہے، جو چاہیے مانگو، کربلا
بات ہے سبحان اللہ کربلا والوں کے غمخوار نظر آتے ہیں ہر ایک چہرے سے عزادار نظر آتے عزادار نظر آتے ہیں کہتی ہے فاطمہ زہرا یہ دعائیں دے کر میرے بچے کے وفادار نظر آتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بچے جو بھی بولا اچھا بولا ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں ضروری فریضہ ادا کر رہا ہوں ضروری فریضہ ادا کر رہا ہوں سجا کر نخی کے لال کی محفل سجا کر نخی کے لال کی محفل عبادت کا حق عبادت کا حق ادا کر رہا ہوں جو دین نبی کو بخشی ہے عزت جو دین نبی کو بخشی ہے عزت میں بھی اسی کی ثنا کر رہا ہوں میں بھی اسی کی ثنا کر رہا ہوں میں مدحت کر کے حسن عسکری کی میں مدحت کر کے حسن عسکری کی حق زندگی کا ادا بول رہا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان حق زندگی کا مختصر بھائی ہے شکر التماس سے دعا ہے او کرب و بلا میں عرش کا مدفن کیا بات ہے صاحب سبحان اللہ او کرب و بلا میں عرش کا مدفن او کرب و بلا میں ہم سب کا مدفن کیا بھائی لائے بھی او کرب و بلا میں ہم سب سب کا مدفن ہم سب تجھ سے دعا کر رہے او کربا بلا او کرب و بلا میں عرش کا مدفن یہ مولا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں یہ مولا میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں دعا کر رہا ہوں ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں ثنائے حسن عسکری کر رہا ہوں ضروری فریضہ ادا کر رہا ہوں سبحان اللہ
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلوات بہت سے بلند. اللہم صلی علی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ. آج بانی نشر کی جانب سے جو نفاذ عمل میں آیا ہے وہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی اور سلسلے ائمہ کے تاریخ ظہور پر کس طرح سے حوالیان حضرت کرار اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور ہمارے اور آپ کے وقت کے ایمان کی خدمت میں بدر بزرگوار کی دنیا میں آنے کی ضرور کی تاریخ پر عرض تبلیغ پیش کر رہے ہیں. آپ کے اور ہمارے 11ویں امام 230 ہجری میں اللہم صلی علی محمد. ظاہر ہوئے ہیں امام علی بن ابی علیہ السلام. آپ کی مادر گرامی جناب سوسن اسلام علیہ اور آپ جب 2 اور 3 برس کے درمیان سن مبارک تھا تو اس وقت حاکم وقت نے بغداد آپ کو طلب کیا اور وہاں سے امام کو سامرا لے جایا گیا امام علی بن ابی علیہ السلام. اور اس وقت امام حسن عسکری علیہ السلام اتنی کمسنی کے عالم میں تھے کہ اپنے بابا کے ہمراہ وہ سامرا پہنچے. سامرا میں امام علیہ السلام کو حاکم وقت نے ایک ایسے مقام پر محروس کر کے رکھا تھا. آج ہم اسے سامرا کہتے ہیں لیکن اس دور میں اس کا نام تھا سامرا اور وہ ایک فوجی چوکی تھی جہاں پر تمام فوجوں کے درمیان میں ایک مکان میں امام کو محروس رکھا گیا تھا اور پابندی تھی کہ عام لوگ امام سے ملنے سے محروم رہے. اس لیے کہ وہ خوف ان پر تھا کہ جہاں پر ارشاد رسالت مآب ہے کہ ہمارا آخری فرزند جو 12واں امام ہوگا وہ ظاہر ہوگا دنیا میں آئے گا اور تمام ان ملائک کا خاتمہ کرے گا. تو انہیں اپنے وجود پر خوف تھا کہ کہیں وہ 12واں امام ظاہر ہو جائے تو پھر ان کی حکومتیں اور ان کی طاقتیں اور ان کے وجود کا اختتام عمل میں آ جائے گا. چنانچہ انہوں نے امام کے لیے وہ پابندیاں لگائی ہوئی تھیں کہ جہاں پر ان کے یہاں فرزند آنے نہ پائے. لیکن یہ بدبخت یہی سمجھتے تھے کہ ہم جو سوچتے ہیں وہ بہتر ہوگا، لیکن پروردگار عالم کی مشیت سے یہ ناواقف تھے کہ جس طرح سے پروردگار چاہتا تھا تو وہ ہر وہ عمل انجام ہوتا تھا. اس لیے کہ دیکھیے حجت خدا کا دنیا میں وجود لازم ہے. جس طرح سے ہم اور آپ اگر کسی چیز کا دعویٰ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بھی فرض کیا تھا کہ اس دعوے کی دلیل بھی چاہیے. اگر ہم دن کہتے ہیں تو سورج اس کی دلالت کرتا ہے، یہ بتلاتا ہے کہ یہ دن ہے کہ سورج اپنی روشنی پھیلاتا ہے. اور اگر رات کہتے ہیں تو رات کا اندھیرا اور تاریکی یہ بتلاتی ہے کہ رات ہے. دلیل بن جاتی ہے کہ سورج کی موجودگی اور سورج کا غائب ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دن اور رات میں تفریق انسان کر سکتا ہے کہ جہاں پر کسی بھی بات کا اگر دعویٰ کیا جا رہا ہے تو بغیر ثبوت کے، بغیر کسی دلیل کے ظاہر نہیں کر سکتے. اور وہی دلیل کو حجت کہتے ہیں اور یہی وہ حجتیں ہیں جو پروردگار عالم کے وجود کو انسان پر بتلا رہے ہیں کہ وجود معبود حقیقی ہے. تو یہ وہ حجتیں ہیں کہ پروردگار عالم نے انہیں معین کیا ہے اپنے دربار کے مظہر بنانا تاکہ امت اور مخلوق تک پروردگار عالم کے وجود کو ثابت کیا جائے. اور پھر یہی وہ وسیلہ اور حجت ہمارے لیے ہوتے ہیں کہ ہماری التجاؤں کو بارگاہ الہی تک پہنچایا جائے. تو یہی وہ حجت ہیں جن کے ذریعے سے ہماری زندگی اور ہمارا مقصد حیات ہے کہ اس کی تابعداری کریں. اور اگر منطقی معنی اگر دیکھیں حجت کے تو حجت کے منطقی معنی یہ ہوتے ہیں کہ نہ ہونے والی چیز کو وجود میں لانے والا. جو کوئی امر ممکن نہیں ہے اس کو ممکن کر دے اس کو حجت کہتے ہیں.
तो हुज्जत इलाही यही वो लोग हैं, यही वो अनवार इलाही है कि जो दुनिया में वजूद परवरदिगार को जाहिर कर रही है और इंसानियत की इल्तिजा को बारगाह इलाही तक पहुंचाते हैं। तो हम उनकी हुज्जतों को मानना है, उनकी हुज्जतों पर अमल करना है और अपने किरदार को उनकी हुज्जतों के अहकामात के पेश नज़र अमल करना है। और वो दौर वो था कि जबकि इमाम हसन अस्करी जब बाद शहादत इमाम अली नबी के बाद आप सिलसिले इमामत पर फायज हुए, लेकिन इमाम सिंध का और मुकाम का मोहताज नहीं होता, इमाम होता है। जब कुछ न था वो इमाम थे, लेकिन यहाँ ज़ाहिरी तौर पर जब मनसब इमामत पर फायज हुए तो हाकिम वक्त ने चाहा कि इमाम को अपने लश्कर से और अपनी ताकत से और अपनी कुव्वत से मरूफ करे, और उसने ये चाहा कि इमाम को अपने लश्कर की नुमाइश कराए, बतलाए कि मैं कितना ताकतवर हूँ, मैं कितना कुव्वत वाला इंसान हूँ इस मुकाम पर। तो उसने ये तय किया कि इमाम को उसी दौर में, उसी वक्त जब ये वाक़या दरपेश हुआ है, तुर्की से एक कसीर लश्कर आया हुआ था, क्योंकि ये हाकिम वक्त बन चुका था और वहाँ पर सामर्रा में वो तुर्की से लश्कर 90,000 का लश्कर आया था, जो हाकिम को सलामी देने के लिए आया था। उस वहाँ के हाकिम ने अपनी खुशी के खातिर उसने हाकिम के पास ये 90,000 के लश्कर को भेजा था और चाहता था कि हाकिम के पास पहुंचे और सलामी पेश करे। तो इसे एक बात याद आई कि ऐसे मौके पर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को बुलाया जाए और उनको इस लश्कर का रोब बताया जाए कि हमारी ताकत और हमारे मुकाम का अंदाज़ा इमाम को हो जाए। ये बदबख्त वो सिलसिले नसब से हैं कि जहाँ पर इन्हें अइम्मा तारीरीन की फजीलत और अज़मत का मालूमात ही नहीं होती, इसलिए कि ये वो नस्ल नाजायज़ से थे कि जो अज़ल से रिसालत माब और उनकी नस्ल से दुश्मनी किया करते थे। चुनांचे जब इमाम को तलब किया गया तो इमाम हाकिम के पास साथ बैठे हैं, उसने अपने लश्कर की तरफ इशारा किया और कहा कि देखिए ये लश्कर मेरे एक इशारे का मुंतज़िर है और ये मुझे सलामी देने आया है, आप इसे मुलाहिज़ा फरमाइए। इमाम मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि तू इस लश्कर की बात कर रहा है, तू देखना चाहता है। इस वक्त तक इमाम का लक़ब अस्करी नहीं हुआ था, इमाम को इमाम हसन कहा जाता था, हसन इब्न अली। और जब इमाम ने ये फरमाया कि तू देखना चाहता है कि हमारा लश्कर, इमाम ने आसमान की तरफ इशारा किया तो आसमान से एक लश्कर आने लगा और हद्दे निगाह तक वो लश्कर फैल गया। देखते ही देखते सारी निगाहों के सामने सारा ये लश्कर मौजूद था और हर सिपाही के हाथ में बरहना तलवारें। ये परेशान होने लगा कि कहने लगा कि ये कौन है, ये मखलूक कौन है और कहाँ से आई है, इतने कम वक्फे में ये इनका यहाँ पर आना समझ में नहीं आ रहा। तूने जंग बदर का जंग फतह किस तरह से हो गई तुझे पता नहीं है। मेरे नाना के साथ जब जंग की गई थी तो नाना के साथ 313 अफराद थे और लश्कर कुफार में कितने लोग थे, हजारों की तादाद का लश्कर था, लेकिन अल्लाह ने उस लश्कर में, हमारे लश्कर में अपने फरिश्तों को भेजा था और मेरे अली बिन अबी तालिब ने इन तमाम शकीकों और नामी गिरामी लोगों को इमाम ने, मेरे जद ने तहदेख किया था। तो इसने कहा कि आप इस लश्कर को इन पर इख्तियार रखते हैं। तो इमाम ने इशारा किया, जुनूब की तरफ इशारा किया तो सारा लश्कर जुनूब की तरफ जाने लगा। शुमाल की तरफ इशारा किया मौला ने तो शुमाल की तरफ लश्कर जाने लगा। तो उसे इमाम ये बतलाना चाह रहे थे कि सारा के सारे का सारा लश्कर हमारे ताबे है। तो उसने कहा कि फरिश्तों का लश्कर और आपके ताबे है और आप चाहते क्या हैं। तो इमाम ने फरमाया कि अगर ये मेरे इंतज़ार के, मेरे हुक्म के इंतज़ार में है और अगर मैं हुक्म दे दूँ तो ये मेरे हुक्म पर अमल कर दें। अब इसके लश्कर का जो रोब डालना चाहता था इमाम पर वो ज़ाया हो गया। उसने हैबत में आकर खुद मरहूब हो गया और कहने लगा कि फर्जंद रसूल आप इनके ये लश्कर आपका ताबे होगा। तो इमाम ने जाहिर कर दिया कि देख ये लश्कर मेरे इंतजार में है, अगर हुक्म दे दो
तो इसी वक्त अपने वजूद पर डर होने लगा कि कहीं इमाम इशारा न कर दें और मैं बदर के शकीयों की तरह हम भी तमाम हो गए। इससे इमाम के कदमों पर गिरने लगा और कहने लगा कि फर्जंद रसूल, मैं तो आपका एहतराम करता हूँ, मैं आपको ताज़ीम करता हूँ। अब यहाँ से उसने अपने रवैये को बदलना शुरू करने की कोशिश की, लेकिन दिल में वही गुस्सा इमाम अलैहिस्सलाम के साथ वही अमल किया। लेकिन इमाम हुज्जत खुदा है, तो परवरदिगार आलम की मशीयत के हामिल है, और जो अल्लाह चाहता है वो इमाम अमल करते हैं, इसलिए कि अभी वो हुज्जत आना था जो दुनिया में अमन और अमान कायम करने वाली हुज्जत, जो रसूलुल्लाह की पेशी गोई पर सरकार असर का आमद का वक्त बाकी था। और फिर आप अलैहिस्सलाम को तबलीग दीन मोहम्मदी को अपने अंदाज में सामर्रा से दूसरे मुकामात तक पहुँचा। तो इमाम ने उसी तरह से वो वाक़यात को अंजाम दिए। लेकिन एक वाक़या जो आप हज़रात को भी मैंने अल्लाह के सबको अपने समाज के लिए पेश किया था, लेकिन अब फिर चूँकि मौजूद कुछ और भी यहाँ जमा है, तो वो आप हज़रात के लिए समाप्त करके जश्न का इख्तिताम में लाएँ कि किस तरह से इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम तमसील का आलम था। और जब आप अपने गुजर परिवार के साथ थे बहुत तमसील थे, तो घर में जो कुआँ था, घर के शहर में कुआँ था, इमाम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ़ थे, मुसल्ला बिछा चुके थे और नियत करने जा रहे थे कि ऐसे में कनीज़ ने आकर कहा कि इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, उस वक्त अस्करी लक़ब नहीं था, इमाम से फरमाया कि बच्चा पूरे में गिर चुका है और आप फ़ौरन अपने फजल को बचाने आए। तो इमाम ने तकबीरतुल इहराम करके नमाज शुरू कर दी, नमाज का आगाज़ हो गया। इमाम ने नमाज पर अदा की, नमाज पर अदा करने के बाद मुसल्ले पर बैठ कर कनीज़ को आवाज़ दी। तो कनीज़ ने आकर बताया कि अभी इमाम हसन इब्न अली कुएं में गिर चुके हैं। तो आपने फरमाया उम्र बलद जाकर एक बार कुएं में फिर से देखो। जब वो कनीज़ जा रही थी तो इमाम अलैहिस्सलाम ने कुएं की तरफ इशारा करके अमर जारी किया, इसलिए कि उलिल अमर है, अमर जारी किया। जैसे ही इमाम अलैहिस्सलाम का अमर जारी हुआ और वो कनीज़ पहुंची है, तो उसने क्या देखा, कुएं में जब जमीन कुएं में देख रही थी तो तरफ पानी था। इमाम अलैहिस्सलाम उस तमसील के आलम में हालत रुकू में थे और देखते ही देखते सतह आग बुलंद होने लगी और कुएं के ऊपर पानी भी आ गया और इमाम भी आ गया। तो इमाम वो होता है कि जो हुक्म देता है, अमर और जारी करता है। इसी की मिसाल अइम्मा तारीख की अंबिया से अगर की जाए, इसलिए कि अंबिया भी मासूम होते हैं, हुज्जतें होती हैं, लेकिन उनकी जो वसअत होती है वो महदूद होती है अंबिया की। लेकिन इमाम की वसअत कायनात पर मुहित है, जैसा कि आपको मैं बता रहा था। लेकिन यहाँ चूँकि मौका था, मैंने हज़रात को सुनाने की कोशिश की है कि जहाँ पर हज़रत यूसुफ जब कुएं में गिर गए थे, क्योंकि तारीख कुरान में बदला गया है कि हज़रत यूसुफ कुएं में गिरे थे, तो उस वक्त जब उनकी इमदाद के लिए आवाज़ दी गई परवरदिगार को, तो परवरदिगार आलम ने जिब्राइल को भेजा था कि जिब्राइल जाओ कुएं से यूसुफ को बचा लो। और जिब्राइल अमीन आए हैं और हज़रत यूसुफ को कुएं से निकाले हैं। लेकिन इस पैगम्बर के, इस नबी के और अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के इख्तियारात का फ़र्क ये है कि जहाँ पर जिब्राइल ने आकर हज़रत यूसुफ को बचाया है, यहाँ पर इमाम ने पानी को कुएं में हुक्म दिया है कि पानी की सतह बुलंद हो जाए। ये अमर है जो उलिल अम्र ही जारी कर सकता है, सिवाय उलिल अम्र के कोई जारी नहीं कर सकता। तो यही वो अंबिया है और यही वो अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम है कि जो उलिल अम्र हैं और उलिल अम्र की इताअत कायनात पर लाज़िम है। और हम वो हैं कि जिस इमाम की पैरवी हम कर रहे हैं, तो उस इमाम के अहकामात हमारे लिए वाजिब होते हैं। और आपके हमारे वक्त के इमाम के अहकामात को अगर हम देखें और अइम्मा तारीन अलैहिस्सलाम के सवाल हयात को अगर हम देखें, तो जो जो फरामीन और जो जो इरशादात इमाम के अब तक बतलाए गए हैं, उन पर हमारा अमल करना लाजिम और वाजिब है। इसलिए कि जब हम ये अमल करेंगे तो इमाम हमसे खुश होंगे और हम इमाम की खुशनुमी का
नाराज हो, इसलिए कि हमसे कोई ऐसा अमल सर न होने पाए कि कहीं हमारे इस अमल की वजह से इमाम नाराज हो, कोई ऐसा अमल न हो, उनकी शान में गुस्ताखी, अल्लाह अकबर। ये हमारे लिए बहुत मायूब बात होती है कि जहाँ पर इल्म तालीम अलैहिस्सलाम की बात आए तो हम और आप कोई हैसियत नहीं रखते हैं, उनके इरशादात पर समन व ताज़न की मंजिल पर रहना चाहिए, किसी किस्म से उन पर शक व शुबहात नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके इरशादात पर अमल करके अपनी ज़िंदगी की रविश को इस तरह से रखना चाहिए कि हम उनके चाहने वाले कहलाएं। अगर कोई अगयार हमें देखे तो ये कहे कि ऐसे होते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद के चाहने। क्या बात है साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। न कि उनके अल्फाज, इसलिए कि आजकल अल्फाज की हेरा फेरी इस तरह से हो रही है कि जहाँ पर हमारे अकायद को मजरूह किया जा रहा है। हमको चाहिए कि हम अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम की सवाने हयात को देखें, उनके इरशादात पर अमल करें और खुशनुदी शहजादी कौनैन और खुशनुदी मोहम्मद वाले मोहम्मद हासिल करने की कोशिश करते हैं। बस यही दुआ के साथ आप हज़रात से इस्तदुआ है कि बारगाह इलाही में आज के दिन के ज़हूर के और इमाम ज़मान के वसीले से अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम और मासूमीन अलैहिस्सलाम के वसीले से यही दुआ है कि परवरदिगारा हम सब मोमिनीन और मोमिनात जो इस वक्त जश्न में मौजूद हैं, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में इलाही आमीन। और बानियान जश्न को उन सब के खानवालों के साथ शाद व आबाद रखें। इलाही आमीन। बानियान जश्न के मरहूमीन के दर्जात को आली। इलाही आमीन। बानियान जश्न को जो मुहिम्मात है उनमें शानदार कामयाबी। इलाही आमीन। आखिरी जश्न में जिन जिनको मुहिम्मात है उन मुहिम्मात में सबको शानदार कामयाबी। इलाही आमीन। हम सबको शर्र आदा और शर्र शयातीन से, आफत क़ल्बी और समावी से, इन वबाई अमराज से, आफत व बलैयात से, शैतान और अशरार के शर से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इलाही आमीन। हमें हमारे औलाद के रिज़्क़ व रोज़गार में खैर बरकत अता फरमाएं। ज़र्रा खातिलाने शहज़ादी कौनैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलाम अलैहा, खातिलाने अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम, खातिलाने मासूमीन अलैहिस्सलाम पर हमेशा के लिए और कभी न खत्म होने वाली लानत और अज़ाब न जिद और ताबूत पर भी और उनके चाहने वालों पर भी बेशुमार लानत और अज़ाब न और कुव्वतें, ताकतें, हुकूमतें और अफराद दाइशबंदी और वो तमाम कुव्वतें जो है तशरीअत के खिलाफ, आज़ादी के खिलाफ काम करें, उन्हें नीज़ को नाबूद फरमाएं। उनके ज़ुल्म और सितम और मकर और फरेब को उन्हीं पर पलट दें। गुस्ताखाने रिसालत, गुस्ताखाने कलाम मजीद और गुस्ताखाने अइम्मा तारीख़ अलैहिस्सलाम को कैफ़र किरदार तक पहुँचाएं। किसी काम करने वाली कुव्वतें, ताकतें, हुकूमतें और अशरार को नीज़ को नाबूद इलाही आमीन। हालात को हमवार फरमा, इलाही आमीन। मुहैया फरमा और जल्द अज जल्द हम सब मोमिनीन और मोमिनात को मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से हज व उम्रे से मुशर्रफ फरमा। इलाही आमीन। हमें जो बीमार है मोमिनीन और मोमिनात और जिन मोमिनीन और मोमिनात ने मुझसे शिफायाबी के लिए इस्तदा की है, परवरदिगारा वहाँ पे मोहम्मद वाले मोहम्मद वहाँ पे बीमार करबला इन तमाम मोमिनीन और मोमिनात को शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा। इलाही आमीन। सबके खानवालों के परेशानियों को दूर फरमा। इलाही आमीन। और जो मोमिनीन और मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। इलाही आमीन। सबके मरहूमीन को आला इल्लीयीन में जगह इलाही आमीन। जन्नतुल बक़ी सामिरा और शाद के रौज़ों की तामीर में ताजील। इलाही आमीन। इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजील। इलाही आमीन। और हम सबको हज़रत के आवान और साथ में शुमार फरमा। इलाही आमीन। आप हज़रात से मालूम है कि एक सूरह फातिहा से दिलदार हुसैन साहब मरहूम, अल मारूफ आबिद हुसैन साहब मरहूम, अहलिया मरहूमा, गुलाम हुसैन ज़ब्बार मरहूम, अल्लाह मक़ाम मरहूम, ज़ाहिरा सैयदा कनीज़ अब्बास रज़वी मरहूमा, अशफ़ाक़ हुसैन ज़ब्बार मरहूम, मुश्ताक़ हुसैन मरहूम, अख्तर हुसैन अख्तर मरहूम, आबिद हुसैन ज़ब्बार मरहूम, इमदाद अली मरहूम, मीर लियाक़त अली मरहूम, फ़ातिमा मरहूमा, नाज़िमा फ़ातिमा मरहूमा, सैयद अली मरहूम, सैयद आबिद अली मरहूम, मकबूल फ़ातिमा मरहूमा, मीर इमदाद अली मरहूम व अहलिया जाफरी बेगम मरहूमा और इस वक्त इस बारगाह में मौजूद हम सब मोमिनीन के तमाम मरहूमीन की अरवाह के लिए एक सूरह फातिहा इरशाद फरमाएं। वजूद हक़ से ये सारा निज़ाम कायम है,
इसी के फैज़ से ये इंतज़ाम कायम है और होगी यतीमान मज़हब व मिल्लत हमारे सर पर हमारा इमाम कायम है। मोहम्मद वाले मोहम्मद अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलाम वालेकुम फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन।